حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دونوں طرف 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھیں۔ پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری سطر جو ہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ محمد رسول اللہ، اس کے ثواب میں ہمیں مل گیا، اور جو دنیا میں ہم نے کھا پی لیا اس کا ہم نے نفع اٹھا لیا۔ سمجھ گئے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا؟ پہلی سطر پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، دوسری سطر پہ جو ہم نے صدقہ وغیرہ کر دیا وہ ہے، اس کا ثواب بھی ہمیں ضرور سے ملے گا۔ جو کچھ ہم چھوڑائے اس میں ہمیں نقصان ہوا۔ تیسری سطر امت گناہ گار ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ حضرت اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہوا آئے کہ اس کلمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہی کی رضامندی چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرما دیں گے۔ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص تھا، جو اکیلا ہے، جن کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنی زندگی میں نماز قائم کرتا رہا، اور اگر صاحب مال تھا تو زکوٰۃ دیتا رہا، تو وہ شخص اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھے۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل سے فرما برداری اختیار کی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا اور اپنے دل کو کفر و شرک سے پاک کر لیا، اپنی زبان کو سچا رکھا، اپنے نفس کو مطمئن بنایا کہ اس کی اللہ کی یاد سے اور اس کی مرضیات پر چلنے سے اطمینان ملتا ہو، اپنی طبیعت کو درست رکھا کہ وہ برائی کی طرف نہ چلتی ہو، اپنے کان کو حق سننے والا بنایا اور اپنی آنکھ کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والا بنایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کی موت اس حال میں آئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو یقیناً اس کے لیے مغفرت ضروری ہو گئی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے رات کو کوئی آہٹ سنی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کے پاس جا کر یہ خوشخبری سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
انہیں اپنے حال پر رہنے دو تاکہ اعمال کے راستے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے کسی کو شریک نہ کریں، مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اسے عذاب نہ دیں۔ جیسا ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پیر پہ جائیں گے، اس سے منت مانگیں گے، تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر لیتے ہیں۔ ہم نے سیدھے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سب چیزیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ بات اپنے دل میں بٹھا لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور نہ کسی کو قتل کیا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان دو گناہوں کا بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہلکا پھلکا حاضر ہوگا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور کسی کو ناحق خون میں ہاتھ نہ رنگے ہو، وہ جنت کے دروازوں میں جس دروازے سے چاہے گا داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ ہم اپنے پکے سچے ایمان کے ساتھ اللہ کے گھر جاتے ہیں، یعنی ہماری موت پکے سچے ایمان کے ساتھ آتی ہے۔ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو اور ہم کلمہ پڑھتے ہوئے مرے، لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں کہ ہم مر جائیں گے تو اس پیر سے ہم نے منت مانگی ہے، ہماری منت پوری ہو جائے گی، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، تو یہ ہمارا ایمان کو ڈگمگا دیتا ہے۔ اللہ صرف ایک ہے اور ہمیں صرف یہ ایمان اپنے دل میں پکا سچا رکھنا ہے، اور اس کلمے کے ساتھ اللہ ہم سب کی موت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب چلیے چلتے ہیں غیب کی باتوں پر ایمان کی طرف۔ غیب کی باتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر اور تمام غیبی امور پر ایمان لانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر کو مشاہدہ کے بغیر محض ان کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا اور ان کی خبر کے مقابلے میں فانی لذتوں، انسانی مشاہدوں اور مادی تجربوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ، اس کی صفات عالیہ، اس کے رسول اور تقدیر پر ایمان۔ قرآنی آیتیں۔ جب یہود و نصارہ نے کہا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے تو ہم عذاب کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس خیال کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی یہی نیکی و کمال نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور اسی طرح آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں اور نبیوں پر یقین رکھے اور مال کی محبت اور اپنی حاجت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال دے اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور ان عقیدوں اور اعمال کے ساتھ ان کے یہ اخلاق بھی ہوں کہ جب وہ کسی جائز کام کا عہد کر لیں تو اس عہد کو پورا کریں، اور وہ تنگ دستی میں، بیماری میں اور لڑائی کے سخت وقت میں مستقل مزاج رہنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو متقی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگوں اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔
फिर अल्लाह ताला को छोड़कर तुम कहाँ चले जा रहे हो? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, फिर तुम अल्लाह ताला को छोड़कर किस तरफ चले जा रहे हो? अल्लाह ताला का इरशाद है, वे आसमानों और ज़मीन को बग़ैर नमूने के पैदा करने वाले हैं। उनकी कोई औलाद कहाँ से हो सकती है जबकि उनकी कोई बीवी ही नहीं, और अल्लाह ताला ही ने हर चीज़ को पैदा किया है और वही हर चीज़ को जानते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, अच्छा ये तो बताओ कि जो मनी तुम औरतों को रहम में पहुँचाते हो, क्या तुम उससे इंसान बनाते हो या हम बनाने वाले हैं? अल्लाह ताला का इरशाद है, अच्छा फिर ये तो बताओ कि ज़मीन में जो बीज तुम डालते हो उसे तुम उगाते हो या हम उसको उगाने वाले हैं? अल्लाह ताला का इरशाद है, अच्छा फिर ये तो बताओ कि जो पानी तुम पीते हो उसको बादलों से तुमने बरसाया या हम उसको बरसाने वाले हैं? अगर हम चाहें तो उस पानी को कड़वा कर दें, तुम क्यों शुक्र नहीं करते? अच्छा फिर ये तो बताओ कि जिस आग को तुम सुलगाते हो उसके ख़ास दरख्त को और इसी तरह जिन ज़रियों से यह आग पैदा होती है उनको तुमने पैदा किया या हम उसको पैदा करने वाले हैं? अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला बीज और गुठली को फाड़ने वाले हैं, वही जानदार को बेजान से निकालते हैं, वही जानदार को बेजान से निकालते हैं, वही बेजान को जानदार से निकालते हैं, वही तो अल्लाह है जिनकी ऐसी कुदरत है। फिर तुम अल्लाह ताला को छोड़कर कहाँ उसके गैर की तरफ चले जा रहे हो? वही अल्लाह सुबह को रात से निकालने वाले हैं और उसने रात को आराम के लिए बनाया और उसने सूरज और चांद की रफ्तार को हिसाब से रखा। कोई है इस दुनिया में जो सूरज और चांद को अपने हिसाब से चला सके? बिल्कुल भी नहीं चला सकता। अल्लाह की मर्ज़ी से धूप निकलती है, अल्लाह की मर्ज़ी से हवा चलती है, अल्लाह की मर्ज़ी से बारिश होती है। इस दुनिया में कोई भी अल्लाह की मर्ज़ी के बिना ज़र्रा को भी नहीं हिला सकता। बारिश और बरसात तो बहुत दूर की बात है। और उसने सूरज और चांद की रफ्तार को हिसाब से रखा, उसने सूरज और चांद की रफ्तार को अपने हिसाब से रखा। अगर हमारे और तुम्हारे हाथ में सूरज और चांद की रफ्तार होती तो हम क्या करते? वो हमारा फला दुश्मन है, उसके घर पे बहुत तेज़ धूप कर दो, वो जा रहा है उसको मैंने उड़ाना है, वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चला दो। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अपने हाथ में रखा है, जो बड़ी कुदरत और बड़े इल्म वाले हैं। और उसने तुम्हारे फ़ायदे के लिए सितारे बनाए हैं ताकि तुम उनके ज़रिए से रात के अंधेरों में खुश्की और दरिया में रास्ता मालूम कर सको। और हमने ये निशानियाँ खूब खोल कर बयान कर दी उन लोगों के लिए जो भले और बुरे की समझ रखते हैं। और अल्लाह ताला वही है जिन्होंने तुमको असल के एतबार से एक ही इंसान से पैदा किया, फिर कुछ अरसा के लिए तुम्हारा ठिकाना ज़मीन है, फिर तुम कब्र के हवाले कर दिए जाता है। बेशक हमने ये दलीलें भी खोलकर बयान कर दी उन लोगों के लिए जो सूझबूझ रखते हैं। और वही अल्लाह ताला है जिन्होंने आसमान से पानी उतारा और एक ही पानी से मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात को ज़मीन से निकाला, फिर हमने उससे सब्त खेती निकाली, फिर उस खेती से हमने ऐसे दाने निकालते हैं जो ऊपर तले होते हैं, और खजूर की शाखों में से ऐसी गुच्छे निकालते हैं जो फल के बोझ की वजह से झुके हुए होते हैं। और फिर उसी एक पानी से अंगूर के बाग और जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल, रंग, सूरत, जायके में एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और बाज एक दूसरे से नहीं भी मिलते। ज़रा हर एक फल में गौर तो करो जब वे फल लाता है कि बिल्कुल कच्चा और बदमज़ा है, और फिर उसके पकने में भी गौर करो कि उस वक्त तमाम सिफात में कामिल होता है। बेशक यकीन करने वालों के लिए उन चीज़ों में बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, तमाम खूबियाँ अल्लाह ताला ही के लिए हैं जो आसमानों के रब हैं और ज़मीनों के भी रब हैं और तमाम जहानों के रब हैं, और आसमानों और ज़मीन में हर किस्म की बड़ाई उन्हीं के लिए है और ज़बरदस्त और हिकमत वाले हैं। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप यूँ कहा कीजिए कि ए अल्लाह, ए तमाम सल्तनत के मालिक, आप मुल्क का जितना हिस्सा जिसको देना चाहे दे देते हैं और जिससे चाहे छीन लेते हैं, और आप जिसको चाहे इज्जत अता करें और जिसको चाहे जलील कर दें।
हर किस्म की भलाई आप ही के इख्तियार में है। बेशक आप हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर हैं। आप रात को दिन में दाखिल करते हैं और आप ही दिन को रात में दाखिल करते हैं। यानी आप बाज़ मौसमों में रात के कुछ हिस्से को दिन में दाखिल कर देते हैं जिससे दिन बड़ा होने लगता है, और बाज़ मौसमों में दिन के हिस्सों को रात में दाखिल कर देते हैं जिससे रात बड़ी हो जाती है। और आप जानदार चीज़ को बेजान से निकालते हैं और बेजान चीज़ को जानदार से निकालते हैं, और आप जिसको चाहे बेशुमार रिज़्क अता फरमाते हैं। अल्लाह का इरशाद है, और गैब के तमाम खजाने अल्लाह ताला ही के पास हैं। उन खजानों को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, और वह खुश्की और तरी की तमाम चीज़ों को जानते हैं। और दरख्त से कोई पत्ता गिरने वाला ऐसा नहीं जिसको वह ना जानता हो, यानी कि अल्लाह के बराबर ज़र्रा भी नहीं हिल सकता। और ज़मीन की तारीकियों में जो कोई बीज भी पड़ता है वे उसको जानते हैं। और हर तर और खुश्क चीज़ पहले से अल्लाह ताला के यहाँ लोहे महफूज में लिखी जा चुकी है। और वे अल्लाह ताला ही हैं जो रात में तुमको सुला देते हैं और जो कुछ तुम दिन में कर चुके हो उसको जानते हैं। फिर अल्लाह ताला ही तुमको नींद से जगा देते हैं ताकि ज़िंदगी की मुकर्रर मुद्दत पूरी की जाए। आखिरत तुम सबको उन्हीं की तरफ वापस जाना है। हर जानदार चीज़ को अल्लाह की तरफ वापस जाना है। हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। इस दुनिया में जितनी भी जानदार चीज़ें पैदा हुई हैं उन सबको मौत का जायका चखना है, यानी कि हमें अल्लाह की तरफ वापस जाना है। वे तुमको उन अमाल की हकीकत से आगाह कर देंगे जो तुम क्या करते थे। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप उनसे कहिए, क्या मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को अपना मददगार बना लूं? जो आसमानों और ज़मीन के खालिक हैं, वही सबको खिलाते हैं और उन्हें कोई नहीं खिलाता कि वे ज़ात उन हासतों से पाक है। अल्लाह ताला का इरशाद है, हमारे पास हर चीज़ के खजाने भरे पड़े हैं, मगर फिर हम हिकमत से हर चीज़ को एक मुअय्यन मिक़दार से उतारते रहते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या ये लोग काफिरों के पास इज़्ज़त तलाश करते हैं? तो याद रखें कि इज़्ज़त तो सारी की सारी अल्लाह ताला के कब्ज़े में है। जो कुछ तुम्हें मांगना है अल्लाह ताला से मांगो। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जब हम पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, तब हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तो हमें तब सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है, एक ही मददगार दिखाई देता है, वो अल्लाह ताला है। तो जब हम हंसी खुशी रहते हैं, जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, माल और दौलत की कमी नहीं होती, तो हम उसी हालात में अल्लाह ताला की तरफ रहे तो कितना अच्छा होगा। हमारा ईमान पक्का सच्चा अल्लाह ताला की तरफ रहे तो कितना अच्छा होगा। जब हम पर मुसीबत पड़ती है और जब कोई हमारा साथ नहीं देता तो तब हम अल्लाह ताला की तरफ जाते हैं कि ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू ही हमारा मदद करने वाला है। तो यही बातें हमारी समझ में उस वक्त क्यों नहीं आती जब हम तंदुरुस्त होते हैं और हमारे पास दौलत की कोई कमी नहीं होती। हम उसी टाइम 5 टाइम की नमाज क्यों नहीं पढ़ते, रोज़ा क्यों नहीं रखते, अपने दिल में हर टाइम अल्लाह ताला का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का व्रत क्यों नहीं करते, अपना ईमान पक्का सच्चा क्यों नहीं करते। तो इस चीज़ को अपना, जब तुम्हारे हालात अच्छे चलें तो अपने दिल में बसा लो। परेशानी आने पर जब कोई हमारा साथ नहीं देता उस टाइम क्यों हम अल्लाह ताला का हाथ थाम लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हम कितने गुनाह, कितने मजबूर, कितने ज़्यादा गुनाह करके भी चले जाएं, एक अल्लाह की ज़ात ही ऐसी है जो हमारे सब गुनाहों को माफ़ कर देती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कितनी बड़ी शान है। अल्लाह ताला के ऊपर अपना ईमान पक्का सच्चा रखो। अल्लाह ताला हमारी हर गलती को माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और कितने ही जानवर ऐसे हैं जो अपनी रोज़ी जमा करके नहीं रखते, अल्लाह ताला ही उनको भी उनके मिक़दार की रोज़ी पहुंचाते हैं और तुम्हें भी, और वही सबको सुनते हैं और सबको जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितनी भी जानदार चीज़ पैदा की हैं उन सबसे वादा किया है, मैं रात को तुम्हें भूखा नहीं सुलाऊंगा।
अल्लाह ताला ने सबको रोज़ी देने का वादा किया है। ये रोज़ी हमें किसी और के हुक्म से नहीं मिल रही, अल्लाह ताला के हुक्म से ही मिल रही है। अल्लाह ने कहा है मैं अपनी हर जानदार चीज़ को भूखा नहीं सुलाऊंगा। अल्लाह ताला का ये हमसे वादा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, बहनों भाइयों, इन सब बातों को सुनो और अपने दिल में बैठा लो। अल्लाह के ऊपर अपना ईमान पक्का और सच्चा कर लो। आप उनसे फरमाइए कि ज़रा ये तो बताओ, अगर तुम्हारी बदअमली पर अल्लाह ताला तुम्हारे सुनने और देखने की सलाहियत तुमसे छीन ले, क्योंकि अल्लाह ताला का ही हमारे पर काबू है। अल्लाह चाहे तो 1 मिनट में हमारी रोशनी छीन ले, अल्लाह चाहे तो 1 मिनट में हमारे पैर छीन ले, हाथ छीन ले। अल्लाह 1 सेकंड में हमारी दुनिया इधर से उधर कर सकता है। ये सब ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे कि फिर किसी बात को समझ नहीं सको, तो और क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई और ज़ात इस कायनात में है जो तुमको ये चीज़ें दोबारा लौटा दे। आप देखिए तो हम किस तरह मुख्तलिफ पहलुओं से निशानियां बयान करते हैं, फिर भी ये लोग बेरुखी करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें सब चीज़ें, आँख, नाक, कान, पैर, हाथ, चेहरा, जिस्म, सब चीज़ें मुकम्मल करके भेजी है। आप ज़रा उनसे पूछिए जिनके पैर नहीं है, आँखें नहीं है, क्या साइंस अभी इतना आगे नहीं पहुंचा? अगर तुम कुछ चीज़ भी लगाने चाहो तो लाखों से लाखों रुपये लग जाते हैं और वो चीज़ वैसी नहीं बनती। ये अल्लाह ताला की शान है कि उसने हमें सब चीज़ों के साथ मुकम्मल करके भेजा। साइंस में इंसान तो बना सकते हैं लेकिन जान नहीं डाल सकते। जान डालने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप उनसे पूछिए भला ये तो बताओ कि अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक रात ही रहने दे तो अल्लाह ताला के सिवा वह कौन सा माबूद है जो तुम्हारे लिए रोशनी ले आए। इन बातों को ज़रा ध्यान से सुनो, इन बातों पर ध्यान दो। क्या तुम सुनते नहीं? आप उनसे ये भी पूछिए कि ये तो बताओ, अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक दिन ही रहने दे तो अल्लाह ताला के सिवा वह कौन सा माबूद है जो तुम्हारे लिए रात ले आए ताकि तुम उसमें आराम करो। क्या तुम देखते नहीं? अल्लाह ताला का इरशाद है, और उसकी कुदरत की निशानियों में से समंदर में पहाड़ जैसे जहाज़ हैं। अगर वे चाहे तो हवा को ठहरा दे और वे जहाज समुद्र की सतह पर खड़े के खड़े रह जाएं। बेशक इसमें कुदरत पर दलालत के लिए हर साबिर व शाकिर मोमिन के लिए निशानियां हैं। या अगर वे चाहे तो हवा चलाकर उन जहाज़ों के सवारों को उनके बुरे अमाल की वजह से तबाह कर दे और बहुत सी दरगुजर की ही फरमा दे। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने दाऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी तरफ से बड़ी नेमत दी थी। चुनाचे हमने पहाड़ों को हुक्म दिया था कि दाऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मिलकर तस्बीह किया करो, और यही हुक्म परिंदों को दिया था, और हमने उनके लिए लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया था। अल्लाह ताला का इरशाद है, हमने कारून की शरारतों की वजह से उसको अपने महल समेत ज़मीन में धंसा दिया। फिर उसको मदद के लिए कोई जमात भी खड़ी नहीं हुई जो अल्लाह ताला के अजाब से उसको बचा लेती, और न वह अपने आप को खुद ही बचा सके।